ملتان میں قومی تاجر اتحاد کا بجلی کی قیمت میں آئے روز اضافے کے خلاف احتجاج ملز پھاٹک مظفرآباد شیرشاہ روڈ پر احتجاج کے دوران مظاہرین نے حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ ملتان میں قومی تاجر اتحاد کا بجلی کی قیمت میں آئے روز اضافے کے خلاف احتجاج۔ مرکزی صدر قومی تاجر اتحاد ملک سلطان محمود اور سٹی صدر ملک اقبال جاوید کی زیر قیادت احتجاج ملز پھاٹک مظفرآباد شیرشاہ روڈ پر کیا گیا۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مرکزی صدر قومی تاجر اتحاد کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ 199 یونٹ والے کا بل 3000 اور 201 یونٹ والے کا بل 9000 آ رہا ہے۔ تاجروں کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا ناممکن ہو چکے ہیں۔ جو اس وقت چھوٹے بڑے تاجروں کے ساتھ 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو ٹیرف بنائے ہیں وہ اتنا ظالمانہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ سٹی صدر قومی تاجر اتحاد ملک اقبال جاوید نے کہا کہ حکومت نے بجٹ میں ہر چیز پر ٹیکس لگا کر تاجروں کا معاشی قتل کیا ہے۔ قومی تاجر اتحاد نے آج پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی ہے۔ اس کا پورے پاکستان میں دائرہ بڑھا دیں گے اور ہمیں پارلیمنٹ کا گھراؤ کرنا پڑا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کمی نہیں چھوڑیں گے، پارلیمنٹ کا گھراؤ کریں گے۔ ہمیں ہمارا یہ حق ہے، 75 سال سے عوام پیس رہی ہے۔ IMF کا قرضہ ہمارے لیے نہیں لیا، انہوں نے اپنی عائشوں کے لیے لیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت اگر بجلی کی قیمت میں کمی نہیں کرتی تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ کیمرامین عرفان اسلم کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ قیمت میں اضافے کے بعد پیٹرول 265 اور ڈیزل 277 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے ملتان کے عوام بھی شدید پریشان ہیں۔ حکومت نے عوام پر مہنگائی کا نیا بم گرا دیا۔ پیٹرول 7 روپے 45 پیسے مہنگا ہو کر 265 روپے 61 پیسے فی لیٹر ہو گیا، جبکہ ڈیزل کی قیمت 9 روپے 56 پیسے اضافے کے بعد 277 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ملتان کے عوام نے پیٹرول ڈیزل کی نئی قیمتیں سن کر سر پکڑ لیے۔ شہری کہتے ہیں رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پیٹرول مہنگا ہو چکا ہوتا ہے۔ حکومت غریب کے حالات بد سے بدتر کرتی جا رہی ہے۔ 2 روپے 4 روپے کم کرتے ہیں 15 دن بعد، اور جب بڑھاتے ہیں تو 10 روپے 15 روپے بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دکاندار اور جو ہے نا عام لوگ جو ہے نا پس رہے ہیں۔ ظلم کر رہے ہیں غریب آدمی پہ، بندہ کمائے گھر کی کرے پیٹرول ڈلوائے، کیا کرے بندہ، اتنا ظلم بھی ہوتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، 12-1 بجے پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا، صبح اٹھتے ہیں تو پیٹرول مہنگا ہوتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ دیگر اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن پیٹرول پر آمدن کا بڑا حصہ خرچ ہونے لگا ہے۔ حکومت غریب عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ گورنمنٹ کا نظام بالکل ہی غلط ہے۔ پیٹرول کی پرائز تو انہوں نے انکریز کر دی ہے، لیکن پچھلے دفعہ انہوں نے 5-10 روپے کم کیا ہے، اب 5-10 روپے پھر بڑھا دیا ہے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جتنا بڑھائیں جتنا کم کریں، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ان کو روکیں۔ پیٹرول کی زیادتی ہے اور کیا، پیٹرول بڑھا دیا ہے، انہوں نے تھوڑی پوری کرنی ہوتی ہے، ہم سیلری پیشہ بندہ ہے، ہم کیا کریں۔ شہریوں نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 7 روپے 45 پیسے جبکہ ڈیزل 9 روپے 56 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ بجلی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر جنوبی پنجاب کے شہری اور تاجر سراپا احتجاج۔ مہنگی بجلی اور پیٹرول نے عوام کو ناکو چنے چبوا دیے۔ رحیم یار خان کے مکینوں کا مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پہلے بجلی اور اب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ظلم ہے۔ مظاہرین کی مہنگائی کے خلاف نعرے بازی، بجلی کے بل جلا دیے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ زیورات بیچ کر بجلی کے بل ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت نے جینا مشکل کر دیا۔ حکومت مہنگائی کو فوری طور پر کنٹرول کرے۔ رات ایک بہت بڑا پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب ہے وہ پس چکا ہے۔ جو IMF ورلڈ بینک کے جو دلال ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ جب IMF ورلڈ بینک سے پیسے لیتے ہیں تو وہ وہاں پہ اوپر اپنا حصہ بانٹ لیتے ہیں، اور قرضہ جو ہے ہم غریب عوام دیتے ہیں۔ مظفر گڑھ میں تاجروں کا مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج۔ ملتان روڈ پر احتجاج کے دوران مظاہرین نے بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی۔ تاجروں نے اس موقع پر شدید نعرے بازی بھی کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کی بنیادی ٹیرف اور ٹیکسز میں اضافہ واپس لیا جائے۔ صوبائی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران سلیم شیخ کا کہنا تھا کہ بجلی کی بنیادی ٹیرف اور ٹیکسز میں اضافہ واپس لیا جائے ورنہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ ہم اس وقت پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اب یہ بالفور احتجاج ہے۔ اگر اس معاملے کو غور نہ کیا گیا تو ہم شٹر ہڑتال کا بھی اعلان کریں گے۔ ہم تھک گئے ہیں، ہمارے تاجر برادری تھک گئی ہے، کرائے کی دکانوں کے پیسے بھریں یا لوگوں کے بل بھریں۔
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। भावल नगर के शहरी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा यकसर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे। महंगाई में इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है, ऊपर से ये जो इस तरह जुलाई में जो बजट लागू हो गया है, इससे जो टैक्सेस का इजाफा हुआ है, उसी मतलब में ये पेट्रोल बढ़ाया गया है, इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। क्योंकि एक एक रुपए 2-2 रुपए घटाते हैं, जब बढ़ने के वक्त आता है तो 10 रुपए 7 रुपए 20 रुपए इकट्ठा बढ़ा देते हैं। जतोई के अवाम भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहते हैं आम आदमी के साथ साथ सफेद पोश तबका भी परेशान होकर रह गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किसान बुरी तरह मुतासिर होंगे। अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। हर यकम को ये कहती है कि हम 40 रेट कम कर रहे हैं पेट्रोल का, तो फिर करती क्या है? करती ये है कि 5 रुपए 4 रुपए इतनी कम कर देती है, और जब बढ़ाने की बात आती है तो 40 रुपए बढ़ा देती है, 30 रुपए। अब डीजल का रेट बढ़ा दिया है, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है, इससे हमारा नुकसान होता है। पेट्रोल महंगा होने पर गरीब आवाम की बर्दाश्त जवाब दे गई। अहमदपुर लम्मा के शहरियों का पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम करे। महंगाई में पहले भी पिस रही है, और अभी जो ये इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत में, हम ये गरीब आवाम के साथ और बड़ा धोखा किया गया है, और उसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। शहरी और ताजरों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में गरीब का जिंदा रहना मुश्किल हो गया। हुकूमत बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी करे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। मियांवाली में महंगाई का तूफान ना थम सका। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहरियों का कहना है कि अद्वियात कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। मियांवाली में महंगाई का चिन्ह बोतल से बाहर आ गया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़श्ता हफ्ते 3500 रुपए में मिलने वाली अद्वियात 5000 रुपए में मिलने लगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। तो दिन ब दिन हफ्ता आप देख लें, हफ्ता ही हुआ है, हफ्ते में इन्होंने मेडिसिन का रेट डबल ही कर दिया तकरीबन। तो हुकूमत को चाहिए कि कुछ न कुछ कम किया जाए रेट को। दुकानदारों को कहना था कि 5 टन गोलियों की डिबिया 340 रुपए से बढ़कर 530 रुपए की हो गई। वीनोफार इंजेक्शन की कीमत 2850 रुपए से बढ़कर 3800 रुपए कर दी गई। नेरोबियान इंजेक्शन की कीमत 750 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए हो गई। क्लेरिसाइड गोलियों की कीमत 450 रुपए से बढ़कर 530 रुपए हो गई है। डीलर अद्वियात की तरसील को रोक देते हैं, हमें स्टॉक कम दिया जाता है। हर हफ्ते नए रेट पर अद्वियात खरीदते हैं। एक इंजेक्शन है नेरोबियान, वो था 750 रुपए का था, अब 1100 का हो गया। उसके अलावा स्टॉक भी बहुत कम मिलता है। एक हफ्ते यानी कि मेडिसिन बंदा लिखवाता है 10,000 20,000 की, तो 5,000 7,000 की मेडिसिन मिलती है। कहते हैं शार्ट है, जब आती है तो रेट बढ़ जाता है। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात को सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर में सेहत के शोबे से अच्छी खबर आ गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलक जहीर इकबाल ने MS डॉक्टर हामिद खान के हमरा सरसादिक अब्बासी अस्पताल में इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि अब अस्पताल में मरीजों को बेहतर सहूलियात मैसर होंगी। बहावलपुर सरसादिक अब्बासी अस्पताल में इमरजेंसी का इफ्तिताह। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ ने MS डॉक्टर हामिद जोया के हमरा 8 माह से बंद इमरजेंसी को फिर से बहाल कर दिया। शोबा इमरजेंसी में ट्रॉमा सर्विसेज की अपग्रेडेशन की गई है। इससे कबल ट्रॉमा सेंटर सर्विसेज सिर्फ विक्टोरिया अस्पताल में दस्तियाब थी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि इमरजेंसी को अपग्रेड करके बहाल किया गया है। इस इलाके की जो महरूमी थी उसका अजाला करने के लिए और जो BVH का बर्डन था उसको कम करने के लिए आज हमने यहाँ पर अपना इमरजेंसी का इफ्तिताह किया। बहावलपुर की आवाम को ये खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसी सिविल हॉस्पिटल के साथ ही यहाँ पर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स और बर्न यूनिट भी यहाँ पर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा बहावलपुर की आवाम को तोहफा देंगी। MS डॉक्टर हामिद खान जोया का कहना था कि इमरजेंसी की बहाली से शहरियों को बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। विक्टोरिया अस्पताल की इमरजेंसी पर भी बोझ कम होगा। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की हिदायत पर नई व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स भी मुहैया किए गए हैं। इमरजेंसी को थोड़ा सा अपग्रेड किया है, थोड़ी रेनोवेशन की है, और इसमें जो कोई कमी कुताही थी, कोई थोड़ा बहुत हमें लग रहा था कि इमरजेंसी बाकायदा तौर पे जो है हमारी उस तरह की नहीं चल रही जो एक टीचिंग हॉस्पिटल की चलनी चाहिए थी, तो उसको हमने इसको अब उस लेवल पे लेके आ रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने बहावलपुर में बर्न यूनिट और चिल्ड्रन कम्प्लेक्स का जल्द संगे बुनियाद रखने का ऐलान भी किया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में ट्रैफिक का निजाम दरहफ्ता हाली का शिकार।
लाखों की लागत से लगे गए ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना हो सके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ओन अब्बास से। अगर हम बात करें मुल्तान शहर में स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से और उसके साथ साथ जो है ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से, तो एक तरफ जहां स्ट्रीट लाइट्स फाल रात के वक्त नहीं होती, चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये फाल ना होने की वजह से भी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। इस वक्त हम नॉर्दर्न बाईपास मौजूद हैं। आप यहाँ के मनाजिर देख सकते हैं कि नॉर्दर्न बाईपास पर, अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद हसीब आपको दिखा सके, सामने ट्रैफिक सिग्नल्स तो लगा दिए गए हैं, मगर ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना होने की वजह से जो है यहाँ पर जितने भी शहरी हैं, जितनी भी ट्रैफिक यहाँ से गुजरनी होती है वो बेहंगम सूरत में होती है और तमाम तर सूरत हाल में जो यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम है काफ़ी अबतर दिखाई देता है। और इसके साथ साथ जो है लोग काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। ट्रैफिक जो है राइट तरफ से आ रही है, लेफ्ट तरफ से जा रही है, ट्रैफिक हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और सामने जिस तरह से स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं तो पूरे रोड पर जो है एक स्ट्रीट लाइट भी जो है वो भी फाल नहीं है, जिसकी वजह से रात के वक्त चोरी डकैती की वारदातें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें मुल्तान शहर के जितने भी अहम तरीन शराह हैं, जितने भी अहम तरीन चौक हैं, जिसमें 9 नंबर चौक है, कचहरी चौक है, नवा शहर चौक है, तमाम चौकों पर भी जो है स्ट्रीट ट्रैफिक सिग्नल्स तो लगा दिए जाते हैं मगर ट्रैफिक सिग्नल फाल नहीं किए जाते, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा मुसलसल बढ़ते हैं। और चौक के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस वक्त कोई ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद नहीं है जो कि तमाम ट्रैफिक को जो है रेगुलेट करे और उसके निज़ाम को बेहतर करे। इंतजामिया से यही मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द जो ये ट्रैफिक सिग्नल्स हैं इन्हें फाल किया जाए। मुल्तान शहर में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, सिर्फ ईदगाह के अलावा बाकी तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं लाखों रुपए मालियत से लगा तो दिए गए इंतजामिया की जानिब से, मगर मेंटेन ना होने की वजह से सारे ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं गैर फाल हैं। और यहाँ पर एक्सीडेंट की शरह जो है रात के वक्त और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रीट लाइट्स की भी बात की तो हेड मोहम्मद वाला रोड पर भी स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, आगे जो ये मॉडल टाउन चौक की तरफ रोड जा रहे हैं यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, और चौक के ऊपर जो ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो गैर फाल हैं। जी शुक्रिया ओन अब्बास। मुल्तान में सब्जियों फलों की सरकारी और मार्केट कीमतों में वाज़ेह फर्क आ गया। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 580 जबकि मार्केट में 750 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। सब्जियों और फलों की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी अरूज पर, दुकानदारों ने मनमर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। अदरक का सरकारी रेट 580 जबकि मार्केट में 750 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। लहसुन सरकारी रेट 266 की बजाय 450 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी नरखनामे में प्याज और हरी मिर्च 84, टमाटर 120 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में हरी मिर्च और प्याज 160, टमाटर 200 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। अरबी 170, करेले 100, भिंडी 110, शिमला मिर्च 80, सब्ज धनिया 116 और आलू 70 रुपए फी किलो हैं। सरकारी नरखनामे में दुशहरी आम 160, सिंदड़ी 64 और अनवर रटोल 180, मालदा सरोली 80 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में अनवर रटोल 64 और सिंदड़ी 300, दोशहरी 270 रुपए फी किलो, लीची 500, खुबानी 300, जामुन 350, लोकाट 200, आड़ू 250 और फालसा 300 रुपए फी किलो दस्तयाब है। चीकू 300, खरबूजा 100, गर्मा 200 और सेब 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अंधेर नगरी चौपट राज नेशनल अस्पताल मुल्तान में पार्किंग माफिया बेलगाम। करप्ट माफिया शहरियों से मोटरसाइकिल एंट्री के 30 रुपए वसूल करने लगा। इश्तर अस्पताल में पार्किंग माफिया बेलगाम। करप्ट माफिया शहरियों से मोटरसाइकिल की फीस 30 रुपए वसूल करने लगा। शहरी कहते हैं पार्किंग फीस पूरे दिन की 30 रुपए मुकर्रर है, जबकि ठेकेदार फी चक्कर 30 रुपए वसूल कर रहा है। 10 दफा हो ना सर 30 रुपए देने पड़ते, 10 दफा अंदर हो 10 दफा 30 रुपए, 5 मिनट बाद वाली 30 रुपए। निश्तर अस्पताल में रोजाना 6000 से जायद मरीज इलाज के लिए आते हैं। लवाहिकीन का कहना था कि मरीज दाखिल हो तो दिन में कई बार अस्पताल से बाहर जाना पड़ता है। ठेकेदार फी चक्कर जबरदस्ती 30 रुपए फीस वसूली करता है। बहुत ज्यादा फीस है 30 रुपए, 10 रुपए होने चाहिए। हालांकि पूरे दिन के 30 रुपए है, लेकिन हर बार आपसे 30 रुपए वसूल की जाती है। हर चक्कर के 30 रुपए वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। फोर्ट अब्बास में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की मुबैना नाअहली। मेन बाजार, मोहम्मदी टाउन, इखलाक बस्ती समेत दीगर इलाकों में गटर लाइन बंद। सीवरेज का पानी गलियों और बाजारों में नदी नालों का मंजर पेश करने लगा।
फोर्टाबाद शहर में सीवरेज के नाकस निजाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मीनबाजार डिगी मोहल्ला, इखलाक टाउन, मोहम्मदी रोड और एमपीए चौक में कई रोज से मेन गटर लाइन बंद। सीवरेज का गंदा पानी गली मोहल्लों में तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी को 12 मरतबा शिकायत भी दर्ज कराई गई मगर अभी तक मसला हल नहीं हो सका। इधर बारिश का पानी है, वैसे मेन होल बंद है, ठीक है, 2-3 ढक्कन नहीं है जो कि आने जाने के लिए मुश्किल है और बड़ा हादसा ना हो जाए। तो हम लोग काफी चक्कर लगा चुके हैं, टाउन कमेटी के एसी साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन मार करके टीएमओ को दी, लेकिन क्या मजाल कोई बंदा इधर आ जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं। 15 दिन से टीएमए के चक्कर लगा रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर सीवरेज का पानी हमारे घरों में दाखिल हो चुका है और इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। आप हमारे हालात देख रहे हैं इस मोहल्ले के, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी इंतजामिया है। ठीक है, ये सीवरेज मोहल्ले की ये सीवरेज खराब है जो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहा है। हम उधर जाते हैं, एसी ऑफिस जाते हैं, वो कहते हैं आपकी कंप्लेन जो है टीएमओ को पहुंच चुकी है। टीएमओ पास जाते हैं, वो कहते हैं अमला पहुंच जाएगा, लेकिन अमला गया, अमले की कोई साया तक इधर तक नहीं आया। शहरियों ने एमसी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सीवरेज लाइन को खोला जाए ताकि गलियों में जमा गंदे पानी से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन इमरान ताहिर के साथ मियां मिश्रा, रोही न्यूज, फोर्टाबाद।